Good evening, my dear student. Today, I want to discuss your third chapter, that is understanding of quadrilateral. Before that, I want to say something. I had covered two chapters. Chapter one is rational number, and second chapter is your linear equation in one variable. So, in that chapter, I had discussed about the how can you solve the linear equation, डिफरेंट टाइप ऑफ लिनियर इक्वेशंस 5 टाइप्स के बारे में मैं आपको समझाया था. आफ्टर दैट योर प्रिंस सर एक्सप्लेन यू द वर्ड प्रॉब्लम, हाउ कैन यू कंप्यूट द वर्ड प्रॉब्लम, सम few word problems he explained. So I think you all of you have understood about the word problem and how can you solve the linear equation to variables. If you have feel any doubt or any type of question, you can ask me in my personal WhatsApp number. As you know, in admin my number is, all of you have know my WhatsApp number. On that WhatsApp number you can ask any doubt, any type of question regarding your chapter 1 and chapter 2. Today I want to discuss the next chapter, that is the chapter number 3, understanding of quadrilateral. So before that, let me discuss the introduction of some geometrical concepts. First of all, I am giving the idea of collinear and non-collinear points. As you know in your earlier classes, what is collinear and what is non-collinear points. Points 2 or more than 2, or you may say 3 points or more than 3 points are said to be collinear if they lie in the same line. For example, see, this is your chapter number 3, understanding of quadrilateral. First of all, I am discussing about the collinear points. Collinear points. So, what do you mean by collinear points? 3 or more than 3. Suppose let me take 3 points. 1, 2, 3. Here this is point A. This one is the point B. This one is the point C. 3 points are said to be collinear. ये इसको हम collinear कब बोलेंगे? जबकि if we draw a line, the point must, if we join 3 lines, we got a single line. It means the points are on the line. The points are on the line. Then we can say a point A, point B and point C are collinear to each other. Collinear का मतलब क्या है? आपको अगर लाइन ड्रॉ करोगे वो 3 पॉइंट को मिलाकर हमको सिंगल लाइन मिलेगा, वो वाला पॉइंट को कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं. नॉन कोलिनियर क्या होगा? अगर मैं 3-4 पॉइंट ले जाऊंगा, यहाँ पे देखो ए पॉइंट लिया हूँ, बी दूसरा, सी, ये है डी, 4 पॉइंट को ये अगर हम जिससे भी हम ज्वाइन करेंगे, ए से डी को ज्वाइन करो, ए से बी को ज्वाइन करो, ए से सी ज्वाइन करो, ए से डी ज्वाइन करो, 2 पॉइंट को ही हम एक लाइन सेगमेंट मिलेगा 2 पॉइंट के बीच, बाकी 2 पॉइंट बच जाएगा, मतलब लाइन के ऊपर ये नहीं आ रहा है. तो सच टाइप ऑफ पॉइंट्स आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. I think you have idea about the collinear and non-collinear points. Now let me discuss some geometrical figure. Okay. यहाँ पे मैं डेफिनेशन आपका लिख चुका हूँ कोलिनियर का. 3 or more than 3 points are said to be collinear if they lie in the same line. इसका डेफिनेशन हुआ, और स्टेटमेंट भी बोल सकते हो. नॉन कोलिनियर पॉइंट का स्टेटमेंट है 3 or more than 3 points are said to be called non-collinear if they are not lie in the same line. Now let me discuss about the non-collinear points को लेके क्या कर सकते हैं, कैसा ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा. एनी ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो भी बोलो, इनक्लोज फिगर के बारे में अगर बोला जाए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बीच भी हो रहा है. ठीक है, तो लेट मी डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर. Okay, so let me see some figure are drawn here. And first of all, this is figure A, this one is the figure B, this is figure C, this is figure D and E, F. यहाँ पे
6 फिगर में ड्रॉ किया हूँ। तो ये फिगर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर. In somewhere the figures are closed, in somewhere the figures are open, and somewhere the figures are complicated, and in somewhere the figures are simple. So which one is the closed figure? Closed का मतलब क्या है? जो कि किसी में गैप नहीं रहेगा, जैसे कि देखो फिगर बी, फिगर सी एंड फिगर ई और फिगर एफ, ये सारा क्लोज फिगर है. ये जितना सारा फिगर ए को छोड़ के फिगर बी से सी डी ई एफ ऑल आर द क्लोज फिगर, बट इन फिगर ए इट इज ओपन फिगर. सो जो क्लोज फिगर में से भी कुछ फिगर सिंपल है. सिंपल मतलब फिगर बी एक ट्रायंगल है जो कि सिंपल है. फिगर सी, इसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे, ये भी एक क्लोज फिगर है. इसका नाम अभी मैं आपको बोलना नहीं चाहता हूँ. ओके. एंड फिगर ई का देखो, ये एक सर्कल है जो कि तुम पहले क्लास में पढ़े हो. ये कॉर्ड फिगर है. क्या है? कॉर्ड फिगर. इसमें सिंपल, लेकिन ये जो फिगर डी है और फिगर एफ है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है दोनों. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप के हिसाब से अलग अलग किस्म का हम फिगर कर सकते हैं. इनमें से कुछ सिंपल है, कुछ कार्ड है, कुछ कुछ जो फिगर जो बोल रहे हैं वो क्या है, क्लोज होकर भी वो क्या है, वो फिगर थोड़ा सिंपल नहीं है. ठीक है. सो नॉन सिंपल भी बोल सकते हो. ये जो फिगर है, अब इस फिगर के बीच में कुछ ऐसे फिगर है जैसे कि फिगर नंबर बी देखो और सी देखो. ये जो फिगर में पर्टिकुलरली ये एनक्लोज हुआ है लाइन सेगमेंट के बीच. क्या हुआ है? लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है? व्हेन टू पॉइंट्स आर जॉइन वन अनदर यू गॉट ए लाइन सेगमेंट. ए बी इज अ लाइन सेगमेंट. अगर दो एंड पॉइंट का अगर एक लाइन सेगमेंट दो एंड पॉइंट होता है, ए बी को ज्वाइन करने से हमको लाइन सेगमेंट मिलेगा. इसी तरह ये जो पहला वाला फिगर, ये जो सेकंड ग्रुप बी में जो बी वाला फिगर में जो क्या हूँ, ये एक लाइन सेगमेंट है. सपोज ये ए, ये बी और ये सी. ए भी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी लाइन सेगमेंट है, सी ए लाइन सेगमेंट. तीन लाइन सेगमेंट एनक्लोज होके ये फिगर बना है जिसका नाम तुम पहले से जान चुके हो. इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं. So a triangle is a figure which are enclosed by three line segment. Similarly, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 लाइन सेगमेंट में एनक्लोज हुआ है. ठीक है. ये फिगर भी 6 लाइन सेगमेंट में एनक्लोज हुआ है. इसका ये जो एनक्लोज हो रहा है, मेरा कहने का मतलब क्या है, लाइन सेगमेंट के बीच जो एनक्लोज होकर जो फिगर बनता है वैसे वाला फिगर को हम बोलेंगे पॉलीगन. क्या बोलेंगे? पॉलीगन. So what is polygon? What is the definition for polygon? It is a closed figure which are enclosed by the line segment. Which are enclosed by the line segment. It is a figure closed figure. देखो ये भी close है, ये भी close है. पॉलीगन का डेफिनेशन वो बनता है. ठीक है. So now let me discuss about the polygon. Polygon क्या होता है? मैं आपको बोला, it is a simple closed curve made of only line segment. लाइन सेगमेंट के बीच जो क्लोज होके जो कर्व बनता है उसको हम बोलेंगे पॉलीगन. फॉर एग्जांपल देखो, इन फर्स्ट केस में यहाँ पे क्लोज फिगर कुछ बनाया हूँ. ये एक फिगर है, ये एक फिगर बनाया हूँ, फोर साइडेड फिगर. ये भी फोर साइडेड फिगर, ये भी फोर साइडेड फिगर जो कि एनक्लोज हुआ है, किसी में भी गैप नहीं है. ये भी फाइव साइड फिगर है, एनक्लोज हुआ है. ये सारा फिगर क्या है? सिंपल है और क्लोज भी है, इसलिए इसको हम पॉलीगन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? पॉलीगन बोलेंगे. सेकंड केस में देखो, ये जो फिगर है लाइन थोड़ा एक्सटेंड हो गया, यहाँ क्लोज नहीं है. ये वाला फिगर भी देखो, उसका कुछ पर्टिकुलर शेप नहीं है और सिंपल भी नहीं है और क्लोज भी नहीं है. क्लोज होकर भी इसका कुछ स्पेसिफिक नहीं है. और ये वाला फिगर देखो, ये लाइन एक्सटेंशन हो गया. ये वाला फिगर देखो, ये चारों तरफ से लाइन है, यहाँ ओपन है. तो ऐसे सिचुएशन में ये सारा ज्योमेट्रिकल फिगर को हम नॉन पॉलीगन बोल सकते हैं और दे आर नॉट पॉलीगन. दे आर नॉट पॉलीगन. नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलीगन. पॉलीगन की टाइप्स क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके. ओके. Let me discuss the different type of polygons.
पॉलीगन्स में टाइप में तो ऐसे वेराइटीज ऑफ पॉलीगन्स आते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्टिसेस और इमेजेस अकॉर्डिंग टू द साइड को भी ले सकते हो, वर्टिसेस को भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं वर्टिसेस लिया हूँ। वर्टिसेस के हिसाब से वो पॉलीगन का नाम अलग अलग होता है। इट विल स्टार्टिंग फ्रॉम 3, ओके। 3 जिसका वर्टिसेस 3 है उसका फिगर का नाम क्या होता है पॉलीगन का? ट्रायंगल। ट्रायंगल, ओके। जिसका फिगर क्या होता है 1 2 3। ये वर्टिसेस ए है, वर्टिसेस बी, वर्टिसेस सी, ओके। The polygon which has 3 vertices, such type of polygon are called triangle, okay. And the polygon which has 4 sides, or you may say the 4 vertices, 4 vertices रहेगा नहीं तो 4 साइड रहेगा, 4 vertices जिसमें रहता है, जो फिगर में ए बी सी vertices and डी vertices। यहाँ देखो ए vertices 1 2 3 4 vertices जिसमें रहता है, वो वाला पॉलीगन को हम क्या बोलेंगे? Quadrilateral, okay. Similarly, if the number of vertices is 5, it is called pentagon. Pentagon, 5 side figure, okay. Similarly, if the vertices is 6, it is called hexagon, okay. 7 8 9 10, that up to number of n number of terms is n gon, क्या बोलते हैं? n gon, उसमें गॉन लगा दो, जितना सारा उसी हिसाब से n गॉन होगा। जैसे कि पेंटागन हेक्सागन तक मैं बोला हूँ, हेक्सागन के बाद आता है क्या? हेप्टागन। 7 साइड को क्या बोलते हैं? हेप्टागन। 8 साइड वाला फिगर को क्या बोलते हैं? ऑक्टागन। 9 साइड को नोनागन, एंड द 10 साइड को डेकागन। 10 साइड को डेकागन। इसी तरह का n साइड को n गॉन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्टिसेस और यू मे से द साइड्स, द नेम ऑफ द डिफरेंट पॉलीगन्स आर कॉल्ड लाइक दैट। 3 साइड को ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइड को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 5 साइड को पेंटागन बोलते हैं, 6 साइड और यू मे से 6 वर्टिसेस जिसमें है हेक्सागन बोलते हैं, जिसमें 7 वर्टिसेस होता है उसको हेप्टागन बोलते हैं। 8 वर्टिसेस और 8 साइड को बोलते हैं ऑक्टागन। 9 वर्टिसेस और 9 साइड को बोलते हैं नोनागन। 10 साइड और 10 वर्टिसेस को बोलते हैं। इसी तरह आपको कम से कम डेकागन तक याद रखो, ये तुम्हारा काम में आएगा, ओके। नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन। कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन, ओके। कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन किसे कहते हैं? सपोज बिफोर दैट आई वांट टू से अबाउट द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। आप लोगों को तो पॉलीगन समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूँ, ओके, इसका जो इनसाइड वाला एंगल जो होता है 1 2 3 4, इसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। इसी तरह अगर एक पेंटागन लूँ, पेंटागन का 5 इंटीरियर एंगल आएगा, हेक्सागन का 6 आएगा, जो भी हो वो बोलते हैं इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। ये सारा एंगल को हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल, ओके। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। सपोज ये भी एक फिगर है, ये भी एक फिगर है, इसका भी इंटीरियर एंगल ये सारा, ये भी इंटीरियर एंगल, ये भी, ओके। सिमिलरली ऐसे भी एक फिगर ले सकते हैं हम, यहाँ भी ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल, ये 5 इंटीरियर एंगल। पहले आपको समझ में आ गया इंटीरियर एंगल क्या होता है। अगर वो इंटीरियर एंगल कोई भी पॉलीगन का मोर देन, कोई भी एक एंगल मोर देन 180 डिग्री हो जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्केव पॉलीगन। समझ में आया? कॉन्केव पॉलीगन क्या होता है? ए पॉलीगन, एनी वन ऑफ द एंगल, इंटीरियर एंगल
is more than 180 degree means it is a reflex angle. क्या होता है? एंगल के बारे में तो आपको पता है, रिफ्लेक्स एंगल होगा। वैसे वाला पॉलीगॉन को हम क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन को बोले कॉनकेव पॉलीगॉन। और बाकी जिसमें रिफ्लेक्स नहीं है, लेस देन 180 डिग्री होगा। जो भी पॉलीगॉन बोले, ये देखो ये वाला पॉलीगॉन में ये चारों एंगल क्या है? लेस देन 180 डिग्री। कोई भी एंगल देखो, ये सारा एंगल एक्यूट एंगल है, लेस देन 180 डिग्री। तो ये हुआ तुम्हारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ये भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। यहाँ पे लेकिन थर्ड केस में देखो, ये वाला एंगल मोर देन 180 डिग्री। देखो ये तीनों क्या है? लेस देन 180 डिग्री, बट दिस एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। एंड लास्ट फिगर में भी देखो, ये चारों क्या है? लेस देन 180 डिग्री, बट वन एंगल, दिस वन इज the inter angle, this inter angle is the reflex angle, or it is more than 180 degree. So these two figures are called concave polygon, and these two figures are called convex polygon. Understood? Now let me discuss about the regular and irregular polygon. Regular polygon क्या होता है? Irregular polygon क्या होता है? For example, यहाँ पे कुछ फिगर में करता हूँ। See, in first case, all the sides are equal and all the angles are equal. So what type of figure is this? This is an equilateral triangle. क्या है? पढ़े हो आपको? Equilateral triangle. और ये देखो, यहाँ भी all the angles are equal. Each angle is 90 degree and all the sides are equal. So this is a square. This is a pentagon having all the sides are equal. You may say the regular pentagon. Regular pentagon. Okay. इरेगुलर का मतलब क्या है? यहाँ साइड्स भी इक्वल है और एंगल भी इक्वल है, इसलिए ये सारा रेगुलर पॉलीगॉन हुआ। यहाँ पेंटागन का एग्जांपल दिया हूँ, स्क्वायर का, ट्रायंगल, ऑल आर रेगुलर पॉलीगॉन। इन सेकंड केस, सी दिस इज अ रेक्टेंगल having opposite sides are equal, not all the sides are equal. No doubt each angle is 190 degree, but here not the sides are equal, only opposite sides are equal. Okay, so this is not a regular polygon. Here also I am drawing here a kite. Kite एक किया हूँ जिसमें ये साइड इक्वल है, ये वाला साइड इक्वल है, इसमें से एक एंगल भी इक्वल है, ये वाला एंगल इज नॉट इक्वल टू दिस एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है, और ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है। ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, ओनली वन एंगल, पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सच टाइप ऑफ फिगर इज नॉट ए रेगुलर पॉलीगॉन। मेरे कहने का मतलब रेगुलर इरेगुलर में क्या बताया हमने आपको? रेगुलर में क्या होता है? एंगल भी इक्वल रहेगा, साइड भी इक्वल रहेगा, वैसे वाला पॉलीगॉन को हम रेगुलर बोलेंगे। इरेगुलर का मतलब जिसमें ये रेगुलर का जो प्रॉपर्टी जो डिजर्व नहीं करता है, उसको हम इरेगुलर बोलेंगे, जैसे कि सेकंड केस में। ओके ओके, नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोला हूँ? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? सम का मतलब प्लस, एंगल को प्लस करेंगे कोई भी पॉलीगॉन का। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ट्रायंगल, आप लोग को पता है सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज हाउ मच? आप लोग को 180 डिग्री पहले आपको बोला गया है, लोअर क्लास में आप पढ़े होंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सम ऑफ थ्री एंगल इज 180 डिग्री। ये पॉलीगॉन है जिसका सम ऑफ थ्री एंगल क्या होता है? 180 डिग्री।
अब ऐसे हम ढेर सारे पॉलीगन के बारे में डिस्कस किए हैं, उसका एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज इक्वल टू n-2 सम ऑफ द एंगल का सम ऑफ द एंगल ऑफ ए पॉलीगन का फॉर्मूला क्या है? n-2 इंटू 180 डिग्री। n क्या होता है? n मीन्स नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड यहाँ पे कितना है? 3 साइड है, तो n की बदले में 3 डालो। तो यही फॉर्मूला में डाला। सम ऑफ द एंगल क्या होता है? 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 3 से 2 जाने से कितना होता है? 1 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें हमको पता चल गया एंगल सम कितना होता है? 180 डिग्री। इस तरह अगर 4 साइड फिगर वाला बोलो, जैसे क्वाड्रिलेटरल का कितना साइड होता है? 4 साइड होता है। n इज इक्वल टू 4 डालो, मतलब क्वाड्रिलेटरल का कितना एंगल होता है? देखो 4, फॉर्मूला क्या है? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो क्या होगा? 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 4 से 2 जाने से कितना होता है? 2 इंटू 180 डिग्री, मतलब 360 डिग्री। इसी तरह तुम नंबर ऑफ साइड जितना फिगर बोलो, पेंटागन बोलो, हेक्सागन बोलो, ऑक्टागन बोलो, डेकागन तक जो मैं बोला, 10 नंबर ऑफ साइड, अगर 10 अगर जितना साइड की होगा इसमें इसी फॉर्मूला में हम डालने से आपको पता चल जाएगा उसका सम ऑफ द एंगल कितना है। ओके ना? बस इतने को आप अच्छी तरह से फंडामेंटल जो बोला हूँ अच्छी तरह से पढ़ो। ये आपका ड्यूटी बनता है, इसको नोट भी बनाओ। और मैं आपको 3.1 तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 3.1 तक डिस्कस करके उसका 3.1 अप टू 3.2 का भी ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी बोला 3.2 में आता है। आप अच्छी तरह से करो जो भी। और इसके बाद एक्सटर्नल एंगल के बारे में नहीं बोला हूँ, कुछ प्रॉब्लम 3.2 में एक्सटर्नल एंगल के बारे में आ रहा है। अगर कोशिश करो, वो तो लोअर क्लास में पढ़े हो, एक्स्ट्रा एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इंटर अपोजिट एंगल मिलान से एक्स्ट्रा एंगल होता है। फिर भी उसके बारे में अगर थोड़ा रिकॉल कर दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इस तरह से याद करना है, याद करके आपको नोट बनाना है। और बाकी चैप्टर 2 का रिवीजन क्वेश्चन मैं नहीं दिया हूँ, और कुछ तुम्हारा प्रिंसर कुछ उसका वर्ड प्रॉब्लम का वीडियो शायद छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद एंटर चैप्टर का आपको नोट में बनाना है, नोट करना है। उसके साथ साथ मैं जो रिवीजन दूंगा उसको भी नोट में करना है। ओके।